Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 2 New Kings and Kingdoms from class 7th History NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 2 from page number 23 Splendid Temples and Bronze Sculpture. The big temples of Tanjavur and Gangaikonda, Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. तो जो ये तंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम के सबसे बड़े मंदिर थे, वो राजा और राजेंद्र द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली स्थापत्य और मूर्तिकला के प्रदर्शन थे. Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by the rulers as well as by others. The produce of this land went to maintain all the specialities who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garlands, makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. तो जो चोल मंदिर के आगे पीछे अक्सर बहुत सारी बस्तियां बस गई थी जो मंदिर के चारों ओर बढ़ते थे. एक आप कह सकते हैं एक उत्पादन के रूप में शिल्प के केंद्र थे जो राजाओं द्वारा भूमि के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी मंदिरों का समर्थन किया गया था. तो भूमि के उपज से होने वाली पैदावार के पैसों को मंदिर के काम करने वाले सभी विशेषज्ञों को बनाए रखने और जो मंदिर के आसपास रहते थे, जैसे पुजारी हो या फिर माला बनाने वाला हो या फिर जो खाना बनाने वाला हो या फिर जो सफाई कर्मी हैं, जो संगीतकार हैं, जो नर्तक है, इन सब के पीछे खर्च किया जाता था. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मंदिर सिर्फ पूजा करने का एक जगह नहीं थी, बल्कि अब वे जीवन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का एक हब बन गया था. इन सब का एक मिक्सचर बन गया था जहाँ सब लोग आते थे. Amongst the crafts associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were the deities, sometimes images were made of devotees as well. तो मंदिर में कांसे यानी कि ब्रॉन्ज, तो इसके चित्र बनाने से जुड़े शिल्प कार्य काफ़ी ज़्यादा अलग थे. चोल कांस्य चित्र दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते थे, जबकि ज़्यादातर चित्र जो थे वो कभी किसी देवी देवता के होते थे और ये जो चित्र हैं ये कई बार भक्तों की भी होते थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at the map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. So these channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. तो चोल की कई उपलब्धियाँ जैसे कृषि में एक नए विकास के माध्यम से संभव हुई. तो अगर आप मैप 2 को फिर से देखेंगे तो आप ध्यान दें कि जो कावेरी नदी है तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे चैनलों में जाती है. तो ये जो छोटे चैनल हैं बार बार ओवरफ्लो होते हैं. तो ओवरफ्लो होने से क्या होता है, इसके कारण उनके किनारों पर जो एकदम उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो जाके जमा हो जाती है. तो चैनलों से जो पानी मिलता है वो खेती के लिए ज़रूरी एकदम नमी जो है वो प्रदान करता है. तो विशेष रूप से यहाँ पे इसके कारण जो चावल की खेती है वो यहाँ ज़्यादा होती है. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. तो
यद्यपि जो खेती है वो तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में पहले विकसित हुई थी, ये केवल 5वीं 6वीं शताब्दी से था। इस जगह को बड़े पैमाने पर खेती के लिए खोला गया था। कुछ जगहों में जंगलों को साफ करना पड़ा, दूसरी जगहों में ज़मीन जो थी वो समतल थी। समतल यानी कि बराबर थी, की जाती थी, एकदम इवन की जाती थी। डेल्टा एरिया में बाढ़ को रोकने के लिए जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनका निर्माण किया गया था। एम्बैंकमेंट्स का मतलब होता है तटबंध, वो जो बांधते हैं ना, जिस तरह से जो फ्लड है जिसको रोका जाता है। तो और नहरों का निर्माण किया गया था ताकि जो खेतों तक पानी है उसको ले जाया जाए। तो कई जगहों में एक साल में 2-2 फसलें उगाई जाती थी। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rurals, as well as people living in villages, took an active interest in these activities. तो काफ़ी मामलों में जो आर्टिफिशियल तरफ से फसलों को पानी जो है वो दिया जाता था। सिंचाई के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। कई जगहों में कुएं खोदे गए, दूसरी जगहों पर बारिश का जो पानी था उसको इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक का निर्माण किया गया था। तो याद रखें, जो सिंचाई कार्य है उसके लिए योजना यानी कि जो प्लानिंग है उसकी आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ मेहनत, काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए इन सभी कार्यों को बनाए रखने के लिए। और इस बात का भी डिसीजन करना है कि पानी जो है वो किस तरह से साझा किया जाए, मतलब किस तरह से अगर 2 जगह है या 2 से 3 जगह है तो किस तरह से उसका बंटवारा किया जाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो नए राजाओं थे, साथ ही गाँव में रहने वाले लोगों ने इन एक्टिविटीज़ में एकदम एक्टिवली, आप कह सकते हैं, पार्टिसिपेट किया। Now next is the administration of empire. How was the administration organized? Settlement of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu had several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया था? तो किसानों की बस्तियां जिन्हें उर के रूप में जाना जाता था, और सिंचाई के बढ़ने से उनकी जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस यानी कि फल फूल रही थी। तो गांव के ऐसे बड़े बड़े समूहों को नाडू कहा जाता था। तो गांव की जो काउंसिल है और इस तरह के जो नाडू हैं वो काफ़ी तरह के प्रशासनिक काम करते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करते थे, जैसे कि न्याय और जो कर है, जो टैक्स है, उसको इकट्ठा करना। Rich peasants of the Velala caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government. The Chola kings gave some rich landowners titles like Muvendavilan, a Velan or a peasant serving 3 kings, Ariar, that is chief, etc., as markers of respect, and entrusted with important offices of the state at the center. We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadeya as a result of a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in the other parts of the South India. तो ये जो वेल्लास थे, तो ये जो वेल्ला जाति के जो धनी किसानों ने नाडू और सेंट्रल चोल गवर्नमेंट की देखरेख के तहत काफ़ी मामलों पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो उन्होंने प्रैक्टिस किया था। तो चोला राजाओं ने कुछ अमीर ज़मींदारों को जैसे मुवेंदविलन उपाधि दी। इसका मतलब एक वेलन या एक किसान जो 3 राजाओं की सेवा करता है। इसके अलावा अरियर यानी कि जो चीफ, तो ऐसी कुछ उपाधि उनको दी गई और इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई और राज्य के सेंटर में उनको इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस प्रोवाइड करी गई। तो हमने अभी तक ऐसा देखा कि जो ब्राह्मणों को अक्सर भूमि ग्रांट के रूप में मिलती थी, जिसे हम ब्रह्मोदय कहते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के दूसरे भागों में जो कावेरी घाटी में बड़ी संख्या में ब्राह्मण बस्तियां उभर कर एकदम सामने आई थी।
Each Brahmadev was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders. This assembly worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Associations of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. तो हर एक ब्रह्मदेव की देखभाल प्रमुख ब्राह्मण जमींदारों की एक सभा या सभा द्वारा की जाती थी। ऐसी विधान सभा थी जो बहुत कुशलता से काम किया करती थी। उनके डिसीशंस इंस्क्रिप्शन में विस्तार से दर्ज किए जाते थे। अक्सर मंदिरों के जो पत्थर हैं तो पत्थरों की जो दीवार पर इनको लगाया जाता था। व्यापारियों के जो संघ हैं उन्होंने भी कभी कभी शहरों में इस तरह के प्रशासनिक काम किए थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरू इन चेंगलपट्ट district, Tamil Nadu, provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committees to look after the irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf and kept in an earthenware pot, from which a young boy was asked to pick the tickets one by one for each committee. तो तमिलनाडु के चिंगलेपी जिले में उत्तरामेरू के शिलालेख जिसमें पूरी डिटेल्स मिलती है कि किस तरीके से जो ये जो सभा है ये आयोजित की जाती थी। तो इस सभा में अलग अलग कमिटीज़ यानी कि जो समितिज़ हैं वो बनाई जाती थी जो सिंचाई कार्य या फिर बागों के काम की देखभाल करें या फिर मंदिरों के जो काम है उनकी देखभाल करें। तो इन समितियों के सदस्यों के नाम उन ताम्रपत्रों के जो पात्र थे उन पे लिखे जाते थे जिन्हें ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। तो इन्हें टिकटों के मतलब एक टिकट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था और इन टिकटों को एक मिट्टी के बर्तन में यानी जो मटका है उसमें डाल दिया जाता था, जिसमें फिर क्या किया जाता था, एक छोटे से लड़के को बुलाया जाता था और उस लड़के को बोला जाता था कि उस घड़े में से जो टिकट है वो एक एक करके निकाले और फिर बताए कि भाई अब ये जो समिति है ये किसको दी जाएगी। इस तरह से इसको किया जाता था। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया। अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।